Hello, good evening, students. I'm your academic counselor, Swarup sir over here. Okay, today we are going to talk about the course MCS 226. This is one of the most important course in the MCA as well as in MSc IS. Okay, the name of the course is Data Science and Big Data. These are the recent trends, and you should know it very well. Okay, and you should understand the concepts very well. You can get good jobs also if you go through all these topics properly. Okay, after that you have to go through coding also, R programming, Python, those okay, map reduce, all these programming. If you are clear with all these things, take it, Keras, TensorFlow, okay, these are the libraries. Okay, so you can, you can get a great job, yeah, in the field of data science very easily. That's why this topic is introduced in MSCIS as well as in MCA. Okay, so let's start. And what's happening over here? I have this data science and big data. I have I have divided this topic in three parts. Part one is data science. Part two will be big data, and part three will be the means data science. What are the algorithms we are using our programming? All the practical things I'll implement and I'll show it. Practically, I'll show all those topics. Hope it is clear. So today I'm going to start with part one, and whatever I'll be teaching here, these are all important from the examination point of view. Okay, so you should go through all these topics, each and every topic. Okay, properly. The way I am teaching, you should go through the videos. You should go through my lecture notes and everything, whatever is there in the screen. Okay, take a pause, yeah, take a screenshot, read that thing, and yeah, and everything will be fine. Hope I am clear with that. Okay, now let's start. Now, what is data science? Okay, data science, let me go through the definition, is a multidisciplinary science with an objective to perform data analysis to generate knowledge that can be used for decision thinking. Okay, means previous data, past data, I am taking that past data, and I am getting some information, some useful information from them, and then I am using that information for decision making. Hope I am clear. Okay, decision making. तो in that way, जैसे होते नहीं है, जो मीन्स इंटेलिजेंट लोग वही होते हैं जो दूसरे की एक्सपीरियंस से सीखते हैं, सो दैट दे आर नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक्स इन द नियर फ्यूचर और एट प्रेजेंट. तो दूसरे का फ्यूचर, दूसरे का डेटा से, इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दूसरे के डेटा से यदि कुछ सीख रहे हो है, तो इसी को हम डेटा साइंस बोल सकते हैं. तो ठीक है, दूसरे के नॉलेज से, दूसरे की एक्सपीरियंस से, जिसकी एक्सपीरियंस है, मतलब दैट पर्सन हैज मेड सम मिस्टेक, और उस मिस्टेक से क्या हुआ, ही हैज लर्न समथिंग. तो आई एम टेकिंग दैट इनपुट and that previous output, and I am using it over here, those all those data, and I am getting some new information. उससे क्या होगा, हम आगे चल के हम वो इंफॉर्मेशन यूज करके हम ये डिसीजन प्रॉपरली ले सके. तो दैट इज डेटा साइंस. होप आई एम क्लियर. ओके, तो डेटा साइंस में क्या होते हैं? ठीक है, मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें स्टैटिस्टिक्स, मॉडलिंग, साइमुलेशन, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल टेक्निक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज अप्लाइड इन डेटा साइंस, आई एम टेलिंग यू. ओके, देन कंप्यूटिंग, इसमें क्या, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोज है. ठीक है, जैसे होते हैं डिसीजन ट्री, होते हैं रिग्रेशन, होते हैं. उसके बाद क्लस्टरिंग की कुछ टॉपिक्स होते हैं. फिर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं. उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स है. ठीक है, तो दोज आर ऑल मशीन लर्निंग एल्गोज, यू कैन से. ओके, देन बिग डेटा, डेटाबेस सिस्टम. बिग डेटा के डेटाबेस सिस्टम, नो सीक्वल कैसे यूज हो रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स हमें जानना पड़ेगा. डेटा साइंस इज नॉट जो मीन्स थोड़ा सा पढ़ लिया और हमें कर लिया. हमें मैथ्स भी जानना जरूरी है, हमें प्रोग्रामिंग जानना जरूरी है, हमें सीक्वल भी जानना जरूरी है, हमें मशीन लर्निंग की जो एल्गोज है वो भी जानना जरूरी है. और डोमेन, किस डोमेन में आप काम करना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हो या फाइनेंशियल फील्ड में काम करना चाहते हो, हाँ, तो वो उस फील्ड के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए. तो ये जो डोमेन है, डोमेन मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस. डेटा साइंस मेडिकल में कहाँ यूज हो रहे, फिनांस में कहाँ यूज हो रहे, फिनांस में कहाँ यूज होता है, एग्जाम्पल ले लो. फिनांस में वहां यूज होता है जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉडुलेशन, या क्रेडिट कार्ड जो जिन्होंने बिल नहीं दिया, तो जो जैसे एक बिल जनरेट होते हैं, तो लोग बिल देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिल नहीं देते. ठीक है, तो वो लोग क्या है, आउटलायर्स, दोज आर डिफॉल्टर्स, यू कैन से. हम स्टैटिस्टिक्स का टर्म में क्या बोलते हैं कि उस बंदे को आउटलायर बोलेंगे. तो वो हमें ढूंढ के निकालना कौन सा आउटलायर है, किसकी कौन प्रॉपरली बिल नहीं दे पाते हैं. ठीक है, तो फिर इसको क्या कहते हैं, सिविल को हम डाउन करते हैं. सिविल ऑल्सो, यू नो, आई थिंक
क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये इससे क्या होगा, सिबिल डाउन हो जाता है। कोई यदि पेमेंट नहीं करते हैं तो प्रॉपरली इन प्रॉपर टाइम, तो उसके क्या होता है, सिबिल डाउन होते हैं। तो वो सारे चीजें, दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। होप आई एम क्लियर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब टाइप्स ऑफ डेटा, हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट से जो भी डेटा लेते हैं, तो उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है डेटा स्ट्रीम। ठीक है, ये चार टाइप्स ऑफ डेटा है जो हमें इंटरनेट से मिलते हैं। ठीक है, इंटरनेट से हमें मिलेंगे, इंटरनेट से मिलेंगे या कहीं से भी डेटा डेटा से लेके आएंगे, या कोई डेटा हम खरीद के लेके आएंगे कुछ भी, तो इट कैन बी ऑफ एनी ऑफ द फॉर्म, इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, इट कैन बी सेमी स्ट्रक्चर्ड, इट कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड, इट कैन बी डेटा स्ट्रीम। ओके, नाउ स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जिसमें स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपने देखा है, ये एम्प्लॉय एक फील्ड है, एम्प्लॉय फील्ड, एम्प्लॉय फील्ड ले लो। उसमें क्या होगा, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, इस तरह के प्रॉपर प्रॉपर हमारा रोज एंड कॉलम्स में ये किया हुआ, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो हम डेटाबेस के थ्रू से करते हैं। देखो लिखा हुआ, इज द डेटा व्हिच कन्फर्म्स टू डेटा मॉडल, हैज अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, follows a consistent order, जैसे मैंने आपको बताया, and can be easily accessed and used by a person for a computer program। ठीक है, तो दिस इज ए structured data। ओके, SQL is often used to manage structured data stored in databases। hope I am clear। आप सोर्सेस ऑफ स्ट्रक्चर डेटा कहाँ कहाँ होंगे, ये सारा आप लोगों को पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, डेटा कन्फर्म्स टू डेटा मॉडल एंड हैज इजीली आइडेंटिफाइबल स्ट्रक्चर, इससे हमें इजीली स्ट्रक्चर को पता चल जाता है। डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अभी मैंने बात की है रोज एंड कॉलम्स की, रोज एंड कॉलम्स में होता है। डेटा इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो डेफिनेशन, फॉर्मेट एंड मीनिंग ऑफ डेटा इज एक्सप्लिसिटली नोन। ऑर्गेनाइज होंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें सामने दिखेंगे, आंखों के सामने। Data resides in fixed fields within a record और फाइल। फिक्स्ड फील्ड में एम्प्लॉय आईडी, तो उसमें एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय नेम नहीं होगी, इस तरह का फिक्स फील्ड में फिक्स डेटा होंगे, जो प्रॉपर डेटा प्रॉपर जगह में आपकी है। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्ट्रक्चर डेटा के। सिमिलर एंटिटीज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म रिलेशंस और क्लासेस, रिलेशन भी बनाए जाते हैं। एंटिटीज इन द सेम ग्रुप हैव सेम एट्रीब्यूट्स। हाँ, यहाँ सेम ग्रुप में जो होगा, एक एक ले लो, एक एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम में जो एट्रीब्यूट्स होगा, सेम एट्रीब्यूट होगा। एम्प्लॉय नेम में क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह से, तो सबकी सेम एट्रीब्यूट होगा। इजी टू एक्सेस क्वेरी, सो डेटा कैन बी इजीली यूज्ड बाय अदर प्रोग्राम। हाँ ठीक है, क्वेरी भी हम यूज कर सकते हैं, सीक्वल यूज करेंगे ना। डेटा एलिमेंट्स आर एड्रेसेबल, सो एफिशिएंट टू एनालाइज एंड प्रोसेस। ओके, सोर्सेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या क्या है, सीक्वल डेटाबेस, स्प्रेडशीट सच एज एक्सेल, ओएलटीपी सिस्टम। ओएलटीपी क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल ले लो, आपने जो ये है क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में आप पेमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाते हैं, उनके पास आते हैं, तो दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन फॉर्म्स, सेंसर्स सच एज जीपीएस, आरएफआईडी टैग्स, नेटवर्क्स एंड वेब सर्वर लॉग्स, मेडिकल डिवाइसेस, हर जगह यूज होता है। मेडिकल डिवाइस में जो भी आउटपुट आएंगे, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, प्रॉपर फॉर्मेट में होंगे। अब चलते सेमी स्ट्रक्चर डेटा, इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा गड़बड़ होंगे। इज ए डेटा दैट डज नॉट कन्फर्म टू डेटा मॉडल बट हैज सम स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर है लेकिन कोई डेटा मॉडल का नहीं है। इट लैक्स ए फिक्स्ड और रिजिड स्कीमा, एक स्कीमा होते हैं जो रोज और कॉलम्स, वो थोड़ा सा फॉर्मेट में गड़बड़ होते हैं, प्रॉपर नहीं होता है। इट इज अ डेटा दैट डज नॉट रिसाइड इन रिलेशनल डेटाबेस बट हैव सम ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टीज टू मेक इट इजियर टू एनालाइज। कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है, तो लेकिन इजियर टू एनालाइज। कैटेगरी देखो, डेटा डज नॉट कन्फर्म टू डेटा मॉडल बट हैज सम स्ट्रक्चर, ठीक है, वही तो मैंने बोला, डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मैंने वो भी बोला, रोज और कॉलम्स में नहीं होते। सेमी स्ट्रक्चर डेटा कंटेन्स टैग्स एंड एलिमेंट्स, मेटा डेटा, which is used to group data and describe how the data is stored। आप सोर्सेस ऑफ सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या क्या होते हैं, आप लोग पढ़ते सीधा, बाकी सारे पॉइंट्स आप लोग खुद देखोगे, ठीक है। emails, XML and other markup languages, binary executables, TCP IP packet, zip files, integration of data from different sources, web pages, ये सारे सोर्सेस जहां से हमें क्या करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मिलता है। होप आई एम क्लियर। ये जो स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, ये पेपर में आएंगे आप लोग के, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ढंग से करो ये सबको, ठीक है, टेक इट सीरियसली। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। data model that has no easily identified structure such that it cannot be used by a computer program easily, वो easily हम यूज नहीं कर सकते, उसका हमें स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्रीडिफाइंड मैनर सो डज नॉट हैव ए प्रीडिफाइंड डेटा मॉडल, कोई डेटा मॉडल नहीं होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है,
cannot be stored in the form of rows and columns, does not allow any semantic or rules, कोई rules follow नहीं होते, data lacks any particular format, कोई format नहीं होता, has no easily identifiable structure, due to lack of identifiable structure it cannot be used by computer programs, easily use भी नहीं कर सकते. Example ले लो, web pages, images, videos, memos, reports, word documents and PowerPoint presentation, surveys, ये सारे क्या है, unstructured data. Hope I am clear. Okay. आप लोग को यदि वीडियो ये लेक्चर मेरा पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट आप लोग लाइक बटन क्लिक करो. ठीक है, तो लाइक बटन क्लिक करो, उसके बाद आप लोग वो जो कमेंट्स होता है कमेंट्स में कमेंट्स करो. ठीक है, तो सो दैट इट बूस्ट मी टू प्रिपेयर सम मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है, this is not my paper, still I am doing it. ठीक है, but this time I am not taking, next time possibly I will be taking this paper in counseling. Okay, तो एटलीस्ट आप लोग लाइक शेयर ये सब चीजें करो तो फिर क्या होंगे, इसमें हमें हमें और ज्यादा ये आएंगे जब लेट्स मेक इट, उससे मुझे पता चलेगा ना दैट व्हाट आई एम टीचिंग, हाउ आई एम टीचिंग, मुझे मुझे उससे ये मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, उससे बूस्टअप भी होंगे, उससे हमें ये भी पता चल जाएगा जब मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, हाउ आई एम टीचिंग. ओके, तो आप लोग उसमें लाइक भी करो, कमेंट्स भी करो. ठीक है, आप चलते हैं डेटा स्ट्रीम. डेटा स्ट्रीम क्या होता है, जो डेटा आ रहे, जैसे मैंने फेसबुक में गया, फेसबुक में पोस्ट कर दी, किसी और ने पोस्ट किया, किसी और ने रिप्लाई किया, तो इस तरह का डेटा स्ट्रीम इज एन एग्जिस्टिंग कंटिन्यूअस ऑर्डर्ड चेन ऑफ आइटम्स, चल रहा, चलते जा रहे, हमेशा चल रहे. दैट इज अ डेटा स्ट्रीम. इट इज अनफिजिबल टू कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते. नॉट इट इज फिजिबल टू लोकली कैप्चर स्ट्रीम इन इट्स एंटायरिटी, हम उसको कैप्चर ही नहीं कर सकते. इट इज एनर्मस वॉल्यूम ऑफ डेटा, इसको हम बिग डेटा ही बोलते हैं, वॉल्यूम से डेटा, इसका बिग डेटा जो हम आगे पढ़ेंगे. डेटा आइटम्स अराइव एट हाई रेट, बहुत ज्यादा हाई रेट में वो आते हैं, डेटा डेटा आते जाते हैं. फेसबुक कितने लोग यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में. ठीक है, तो डेटा क्या होता है, आते रहते हैं, आते रहते हैं. तो दैट्स द थिंग. तो कैसे डेटा स्ट्रीम क्या था, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, पॉसिबली इनफाइनाइट, स्टेडी चेंजिंग एंड रिक्वायर्स अ फास्ट रियल टाइम रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स भी होना चाहिए. डेटा स्ट्रीम्स कैप्चर नाइसली आवर डेटा प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ टुडे. फाइन. रैंडम एक्सेस इज एक्सपेंसिव, एक्सेस करना एक्सपेंसिव है, एंड a सिंगल स्कैन एल्गोरिदम. Okay, stores only the summary of the data seen so far, को सिर्फ समरी होता है. एप्लीकेशन डेटा स्ट्रीम, फ्रॉड परसेप्शन, रियल टाइम गुड्स डीलिंग, कंज्यूमर एंटरप्राइज, ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग और इनसाइड आईटी सिस्टम्स. जैसे कंज्यूमर एंटरप्राइज क्या होता है, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट में मैं डेटा कुछ खरीद रहा हूँ, सारे लोग खरीद रहे हैं, बिग बिलियन डेज में 24 घंटा खरीदते रहते हैं, तो वो सारे क्या डेटा स्ट्रीम आते जाते हैं, एंड इट इज अ ह्यूज वॉल्यूम. तो दिस इज द थिंग. अब ये तो हो गया, अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा टाइप्स. ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज द बेस ऑफ डेटा साइंस, आई एम टेलिंग यू, और मशीन लर्निंग यू कैन से. स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही ये सारी चीजें हैं. पहले क्या होते थे, पहले स्टैटिस्टिक्स की कोई वैल्यू नहीं, लोगों को वैल्यू नहीं पता था. पहले हमारे पास डेटा होता था, ये नहीं होता था. अब डेटा कम पड़ जा रहे, डेटा भी जा बहुत है. ठीक है, साथ में हमारा सारे एल्गोज आ गए. माने ये क्या, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, देन यू कैन से, ठीक है, numerical techniques, everything is used over here, I'm telling you, in this data science topic. Okay, अब चलते हैं. What are the types of data, qualitative and quantitative. ठीक है, अब क्वालिटेटिव होता क्या है, कोई डेटा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फुल नेम, लास्ट नेम, इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ही इज ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स यदि देते कोई भी एक डेटा में. ठीक है, तो दीज आर ऑल क्वालिटी डेटा. मेल फीमेल हम लिखते हैं ना, मेल होते हैं ना, फीमेल है ना, अदर्स है, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्वालिटी डेटा. ओके, दिस प्रॉपर रिस्पेक्ट ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको ये दीज आर नॉट न्यूमेरिकल, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल to a political system, music and art, intelligence, beauty of a person, very beautiful, beautiful, ugly, not ugly, इस तरह का यदि कुछ हो तो these are all qualitative data. ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है. कन्वर्ट करने के भी तरीके हैं, वो हम आगे अभी अब मैं बता देता हूं आपको कन्वर्ट कैसे करते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं एक. क्वालिटेटिव डेटा, इसको क्या करना, कन्वर्ट टू न्यूमेरिकल डेटा. ओके, आप एग्जाम्पल ले लो, एक कॉलम है जिसमें सेक्स लिखा हुआ है.
मेल है, फीमेल है, मेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, 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 इस तरह का कुछ डेटा है चल रहे। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो डेटा है ये क्या है, दिस इज क्वालिटेटिव डेटा। होप आई एम क्लियर। अब इसको न्यूमेरिकल में हमें कन्वर्ट करने कैसे करेंगे, इसके क्या होगा, दो टेबल बनाते हैं। मेल के लिए वन ले लो, फीमेल के लिए जीरो ले लो। सपोज ये मेल है, ये फीमेल है, दो आ गया, दो टेबल, दो हमारा कॉलम बन गए। यहाँ पे क्या है, मेल क्या है, फर्स्ट वाला मेल है, फीमेल तो जीरो हो गया। सेकंड में क्या, फीमेल वन है, कौन से, सॉरी, मेल फीमेल दो हमारे कॉलम बन गए। नो या यहाँ पे क्या, फर्स्ट वाले में क्या है, मेल इज प्रेजेंट, फर्स्ट वाले मेल इज प्रेजेंट, तो मेल वन हो गया, और फर्स्ट में फीमेल तो नहीं है तो जीरो हो गया। होप आई एम क्लियर। सेकंड वाले में क्या, फीमेल है, मेल नहीं है, तो फीमेल को क्या करेंगे, वन कर दो, और मेल को जीरो कर दो। तो उसके बाद थर्ड में क्या है, मेल है, तो वन जीरो। फोर्थ में क्या है, मेल वन जीरो। उसके बाद इसके बाद क्या है, फीमेल जीरो वन। उसके बाद वन जीरो, उसके बाद जीरो वन जीरो वन जीरो वन। तो देखो, कैन यू सी दिस इज अ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट हो गया। होप आई एम क्लियर। आप क्या होते हैं, इसको हम सिंगल टेबल में भी कन्वर्ट, सिंगल कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कन्वर्टेड टू सिंगल कॉलम, कन्वर्टेड सिंगल कॉलम। यहाँ पे सेक्स लिख दो। अब क्या किया, मेल है, मेल वन। सेकेंड में, होप आई एम क्लियर, मेल है। सेकंड में क्या है, मेल क्या है, मेल प्रेजेंट नहीं है तो जीरो कर दो। थर्ड में क्या है, मेल है, तो वन वन। फिर क्या करेंगे, जीरो वन, इस तरह के चलेंगे। तो ऐसे करके क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम उस पर काम करेंगे। दिस इज द वे टू डू। ठीक है, ये सारे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। टेक्निकल टर्म्स आएंगे कुछ, ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकली ये सारी चीजें देखेंगे। तो क्वालिटेटिव डेटा को कन्वर्ट करना क्वांटिटेटिव इज सो इजी। होप आई एम क्लियर। अब ये दो टाइप्स के हैं, नॉमिनल डेटा। ठीक है, नॉमिनल डेटा मतलब क्या होता है, इज अ सब कैटेगरी बिलोंगिंग टू वन ऑफ द टाइप्स। जैसे यही देखो, जेंडर वुमेन मेन, क्या मेल फीमेल ये जो किया, तो ये क्या हो गया, ये जो डेटा है ये क्या है, इसको बोलते हैं नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल डेटा। ठीक है, आई कलर ब्लू ग्रीन ब्राउन। ठीक है, उसके बाद हेयर कलर ब्लॉन्ड ब्राउन ब्रूनेट रेड एटसेट्रा। मैरिटल स्टेटस मैरिड सिंगल। ठीक है, रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। तो ये सारी चीजें नॉमिनल डेटा में आ गई। अब ऑर्डिनल डेटा, नेक्स्ट होता है ऑर्डिनल डेटा, फॉलो सम ऑर्डर, दैट फॉलोज ए नेचुरल ऑर्डर, एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। जैसे फीडबैक, फीडबैक वन टू टेन है। ठीक है, मैंने किसी को नाइन दिया, किसी को एट दिया, तो एक ऑर्डर हो गया ना, तो नाइन से पता चल गया जो उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। किसी को जीरो दे दिया, वन दे दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वेरी पुअर, पुअर फीडबैक। तो उससे हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड ही करेंगे जिसका फीडबैक खराब है। तो वो सारा ऑर्डिनल डेटा में आ गया। ठीक है, दैट फॉलोज सम ऑर्डर। फॉर इंस्टेंस, ऑर्डिनल डेटा variable is mostly found in surveys, economics, questionnaires, and finance operations. Feedback is recorded in the form of ratings from 1 to 10, एजुकेशन लेवल, एलिमेंट्री, हाई स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, दीज आर ऑल ऑर्डिनल। इकोनॉमिक स्टेटस लो मीडियम हाई, ये सारे क्या हो गया, ऑर्डिनल हो गए। ऑर्डिनल एक ऑर्डर फॉलो करता है। लो मतलब क्या, लो ही वैल्यू होगा, मीडियम मतलब मीडियम होगा, हाई मतलब हाईएस्ट होगा जो वैल्यू। जैसे 0 to 2 है, तो जीरो इज द लो, जो वन इज द मीडियम, एंड टू इज द हाई, इन दैट वे। तो दिस इज द ऑर्डिनल डेटा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर ग्रेड्स एबीसी, ये सारे क्या है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। अब हम चलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिटेटिव मतलब जिस जो न्यूमेरिकल होते हैं, दैट इज दे नॉट ऑब्जर्वेबल, वो देख के कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, वैल्यू होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, कैलकुलेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस कैन देन बी कंफर्म टू ऑन द ऑब्टेन्ड रिजल्ट। हम क्या करें, कैलकुलेशंस करके हम कोई रिजल्ट पे पहुंचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जी क्या सीन है उस डेटा की। फॉर इंस्टेंस, डेटा कैन बी रिकॉर्डेड
about how many users found a product satisfactory in terms of collected rating and therefore an overall product review can be generated. एक रिव्यू सबका मीन कर देंगे तो एक रिव्यू आ जाएंगे. एग्जांपल डेली टेम्परेचर, प्राइस, वेट्स, इनकम. जो डेली रोज का टेम्परेचर ले रहे हो उसको 7 डेज के लिए अपॉन सब कैलकुलेट कर सब ऐड करके डिवाइडेड बाय 7 कर दिए तो क्या हो गया, मीन आ गया. तो हमें पता चला कल भी इतना टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर के आसपास होंगे. तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. अब डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में क्या होंगे, एक फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड वैल्यू. जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो क्या होगा, 40 है तो 40 ही होगा, 45 नहीं होगा. द नंबर ऑफ चिक्स इन ए बैग, जितना बैग्स में चिक्स है. द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. तो दीज आर डिस्क्रीट, कितने मिलियन स्टार्स है ये, ठीक है. तो दीज आर ऑल डिस्क्रीट, डिफाइंड है, ठीक है. तो डिस्क्रीट रेफर्स टू डेटा व्हिच कैन ओनली obtain सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज, उससे बाहर नहीं जाएगा. एक रेंज होगा, उस रेंज से बाहर नहीं जाएगा. जैसे टॉसिंग ए कॉइन, हेड और टेल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा. उसके बाद एक होते हैं फ्लिपिंग या रोलिंग अ डाइस, तो 1 2 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से ही आएगा. ये तो नहीं जो 10 आ गया, 15 आ गया, ऐसे तो नहीं है. तो क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यूज है, वही वही वैल्यू आएगा. जिसकी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग बार चार्ट, हम बार चार्ट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस रेटिंग्स ऑफ अ प्रोडक्ट मेड बाय द यूजर्स कैन ओनली बी इन डिस्क्रीट नंबर्स 1 to 10, मैंने जैसे बोला. द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, द नंबर ऑफ, इसको मैंने बताया. अब कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस आते जा रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूअस डेटा, जिसका कोई रेंज नहीं है, रेंज के बाहर है, ठीक है. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस डेटा कैन ऑब्टेन वैल्यूज बिटवीन a certain range that is within the highest and the lowest values. The corresponding difference between the highest and lowest values of these intervals can be termed as the range of the data. Is very important. The difference, one second. The difference between the highest and the lowest value of the interval is termed as the range of the data. Country data can be tabulated what is called a frequency distribution. Frequency distribution से हम कर सकते हैं, ठीक है. ये सारे हम आगे देखेंगे. कंटिन्यूअस डेटा ये होता है. एग्जांपल देखो, हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट, डेली टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स ऑफ प्लेस, विंड स्पीड मेजरमेंट, ये सारे क्या हो गया, विंड स्पीड कुछ भी हो सकते हैं. तो ये सारे क्या हो गया, कंटिन्यूअस डेटा. होप आई एम क्लियर. आप लोग को शायद सब समझ में आ ही रहे हैं, ठीक है. कहीं कुछ समझ ना है तो आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है. जो भी कर रहे हैं, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब हम लोग बात करते हैं सैंपल और पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होता है, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन सारे, तो दैट इज 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वो सारे हो गए पॉपुलेशन. और उससे मैंने 50 बच्चे उठाए, टॉप 50 बच्चे, ठीक है. आई आई के IIT के लिए टॉप 50 बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या हो गया, सैंपल हो गया. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल. देखो, अब बात करते हैं, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर. स्टैटिस्टिक इज कंप्यूटेड फॉर द सैंपल, सैंपल के यूज होते हैं. और पैरामीटर्स आर प्रेडिक्टेड फ्रॉम सैंपल एंड आर अबाउट द पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन के बारे में होता है. पैरामीटर्स पॉपुलेशन के ही होते हैं. सैंपल की मीन को एक्स बार लिखते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन एस लिखते हैं, और सैंपल साइज क्या होता है, स्मॉल एंड. और पॉपुलेशन साइज क्या होता है, म्यू होता है. पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा होते हैं. और पॉपुलेशन साइज क्या होता है, कैपिटल एन होता है. ये सारे टर्म्स आप याद रखोगे, क्यों क्या होगा, आपका जो सेकंड ब्लॉक आएंगे, सेकंड ब्लॉक में पूरी स्टैटिस्टिक्स है. उसका मैं जो लिंक है मैं नीचे दिया हूँ, नीचे आप लोग देखो, एक लिंक दिया हुआ है. उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स के जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारे मैंने एक वीडियो में, ऑलमोस्ट आवर वीडियो 1 घंटे का वीडियो होगा ऑलमोस्ट. उस वीडियो में सारे एक्सप्लेन किया हुआ, वो यदि ढंग से आप लोग कर लोगे तो आपका वो पेपर, वो टॉपिक भी हो जाएगा, एंड यू कैन इजिली स्कोर ग्रेट मार्क्स, आई एम टेलिंग यू. तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, वो टॉपिक में आप चले जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक में, वहां पे आप देखेंगे सारे क्या क्या मीन्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह के न्यूमेरिकल्स आता है, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड ओवर देयर. ओके, वहां से आप लोग देख लोगे उसको, उसको मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है. होप आई एम क्लियर. अब रिलेशनशिप, ये जो है इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर, बेल शाफ्ट का. ओके. मीन मीडियन मोड क्या होता है, यदि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, माने लेफ्ट में भी सेम है, जितना सिमेट्री है इधर भी सेम है, तो क्या हो गया, मीन मोड मीडियन मोड सब क्या होगा, बीच में होगा. आई एम टेलिंग यू, ठीक है. तो दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. वन सेक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब क्या हो गया,
अब देखो ये क्या हो रहा है, मीन इज क्वाइट, मीन इज लेस देन, देखो यहाँ पे क्या है, मीन मीडियन मोड। अब मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, यदि या मीडियन इज ग्रेटर देन मीन यदि हो तो फिर क्या होगा, ये लेफ्ट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड। ये सारे हम लोग एक्सप्लेन किए हुए हैं वहां पे उस लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद राइट स्क्यूड, ये वाला राइट स्क्यूड, मैंने डेटा क्या हो रहा है, डेटा राइट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, देखो ये डेटा ज्यादा राइट की तरफ है, यहाँ पे डेटा क्या है, लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट स्क्यूड है, ये राइट की तरफ। दीज आर नॉट सिमेट्रिक इन नेचर। तो ये फिगर्स आप लोग याद रखो, कभी कभी पूछ लेते हैं, जे इसका फिगर बना के दिखाओ, लेफ्ट स्क्यू राइट स्क्यू, या आप पूरा प्रॉपर सिमेट्री है तो कैसे होते हैं, ठीक है। आप ये कुछ टर्म्स है वो आप लोग देखो। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस मतलब वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन, माने मीन से कितना दूर दूर में है, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेबल and its sample, which is divided by n minus 1, as the difference of nth value can be determined from n minus 1 compute difference as overall sum of difference to be 0. फार्मूला ऑफ वेरिएंस क्या है, ये वाला फार्मूला ऑफ वेरिएंस है। क्या होता है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, दिस वन इज द डेटा एंड दिस वन इज द मीन। दोनों का डिफरेंस करोगे, होल स्क्वायर करोगे और सबको प्लस करते जाओगे, ठीक है, तो यू विल गेट वेरिएंस ओवर हियर, ठीक है। या वेरिएंस ऑफ सैंपल, कीप इन माइंड वेरिएंस ऑफ सैंपल का फॉर्मूला है। और वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या है, 1/n कैपिटल N आई इक्वल टू 1 to n x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। म्यू इज द पॉपुलेशन मीन, दिस वन इज पॉपुलेशन मीन। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखोगे, जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एक स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्प्रेड ऑफ वेरिएबल ऑफ द डेटा। स्प्रेड, डेटा कितने स्प्रेड है, जैसे एग्जांपल ले लो, ऐसे किया हुआ है, एक लाइन है, डेटा कितने स्प्रेड है, तो ये हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन के थ्रू से पता कर सकते हैं डेटा कितने स्प्रेड है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो फॉर सैंपल क्या है, फॉर सैंपल के लिए फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू रूट ओवर 1/1 अपॉन n माइनस 1 आई इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, फॉर पॉपुलेशन क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू रूट ओवर 1/n आई इक्वल टू 1 to n x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के ये सारे फॉर्मूला है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 5 पॉइंट समरी हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, मीन वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितने हैं, मीडियन वैल्यू कितने हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद Q3 क्या है, Q4 क्या है, ये सारे बातें हमें यहाँ पे पता चलेगी। देखो मीन 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट समरी, इसको बोलते हैं 5 पॉइंट समरी। ओके, 5 पॉइंट समरी, मीन Q1 Q2 Q3 Q4। अब देखो ये जो आप Q1, ये देखो मीन टू Q2 के बीच में जो Q1 है, ये क्या है, ये वाला मीडियन है, मीन और Q2 के बीच में। और Q2 और मैक्स का बीच में क्या है, Q3 इज द मीडियन। होप आई एम क्लियर। एंड Q2 इज द मीडियन ऑफ द होल डेटा। तो Q1 इज द मीडियन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द डेटा, Q3 इज द मीडियन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द डेटा, जो मैंने बोला वही लिखे हो, ठीक है। IQR रिप्रेजेंट द मिडिल 50% ऑफ द डेटा, मिडिल 50%, ठीक है। IQR का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। इसी से हम लोग इंटरेस्ट ज्यादा है, Q3 और Q1 से। Q1 रिप्रेजेंट द 25th परसेंटाइल, ये 25th परसेंटाइल है। और Q3 क्या है, 75 परसेंटाइल। क्यों, जीरो है, ये 25 है, ये 50 है, 75 है, 100, मैक्स में 100, तो क्या हो गया, 100% ही तो होता है। तो ये पहले क्या हो गया, 25%, फिर Q2 50%, उसके बाद 75%, उसके बाद 100%, ठीक है। तो दैट आई रिटन ओवर हियर। आप ये इससे करते क्या है, हम इससे क्या करते हैं, आउटलायर निकालते हैं। मैंने क्या आउटलायर का आप लोग बात कर रहे थे, आउटलायर, बार बार आउटलायर बोल रहा हूँ, तो आउटलायर निकालने का ये एक तरीका, वन सेक प्लीज। ठीक है, जैसे हम लोग बैंक में क्या होता है, बैंक में कौन बंदे ने बिल दिया नहीं दिया, जिसका या प्रॉपर टाइम में पेमेंट कर रहे नहीं कर रहे, तो उसका जो सिबिल डाउन होता है, ये जो सारी चीजें हम लोग को पता होता है, ये कैसे होते हैं, थ्रू IQR ओनली, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इससे सारी कहानी पता चल जाते हैं, जिसने प्रॉपर डेट में नहीं दिया, ठीक है। हम सारे डेट्स ले लेते हैं, और जो डेट का बाहर होता है, वो जो एक सपोज फर्स्ट 20, जैसे किसी को 6 तारीख को पेमेंट करना है, 6 तारीख को पेमेंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 17 को बिल आया, तो 17 से 6, 17 से 6 का बाहर जो भी डेटा होगा,
7 8 वो सारे क्या होगा, आउटलायर होगा। उसका मतलब उस वो लोग क्या किया, बिल नहीं दिए है। तो उसका पहले सिविल डाउन करेगा, उसके बाद उसके जो डेटा है वो दे दिया जाता है कस्टमर केयर को। वो जो बाहर वाले कस्टमर केयर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, फोन करके बोलने लगते हैं आपने बिल नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये सारे एप्लीकेशन है इसी डेटा साइंस की। ठीक है, और ये हम अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। Outlier, sometimes we may have a data point that is either all the way to the right, that is very high, or to the left, that is very very low। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आउटलायर बोलते हैं। In order to find if a number is an outlier, the outlier will exist outside of a formula है q1 minus 1.5 into iqr to q3 plus 1.5 into iqr। देखेंगे ये कैसे होंगे। आप डेटा ले लेते हैं 5 8 15 26 10 18 3 ऐसे करके ले लिए। Let's find iqr and then let's see if there is an outlier। Okay, arrange the numbers in ascending order। कर लेते हैं। तो ascending order में क्या होगा, 3 5 6 8 10 11 12 14 15 18 26। आप लोग कीजिए ascending order में। ठीक है, नेक्स्ट वी फाइंड द मीडियन ऑफ द एंटायर डेटा सेट। तो मीडियन क्या है, कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है, तो क्या होगा, 11 प्लस 1 बाई 11, क्या होता है, ये ऑड है ना, ऑड है तो क्या होगा, 11 है। एन इक्वल टू कितना है, 11। एन क्या है, टोटल डेटा, टोटल डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या होगा, मीडियन इक्वल टू क्या होगा, एक सेकंड। आप लोग देखो, ये कैलकुलेशन देखो, बहुत जरूरी है। मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई टू आइटम। आइटम n कितना, 11 प्लस 1 बाई टू आइटम इक्वल टू कितना, सिक्स आइटम। अब ये सारा एसेडिंग में कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो मीडियन कितना हो गया, 11 हो गया। देखो मीडियन 11 है, तो Q2 क्या हो गया, Q2 11 हो गया। होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब कितना डेटा है, इधर लेफ्ट लेफ्ट पोर्शन में चले जाओ। लेफ्ट पोर्शन में 1 2 3 4 5, वही n प्लस 1 बाई टू आइटम करेगा तो 6 इज द Q1। ऐसे राइट हैंड साइड में देखोगे तो n प्लस 1 बाई टू, तो 15 इज द Q3। होप आई एम क्लियर। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द मीडियन ऑफ द लोअर अप। मीडियन इक्वल टू कितने, 6, वो तो हमने निकाल लिए, और अपर अप को निकाल दे। तो आई क्यू आर इक्वल टू क्या होता है, Q3 माइनस Q1। Q3 कितने हैं, 15 माइनस 6 कितने होते, 9। 15 माइनस 6 इज 9, तो 9 इज दिस। ठीक है, आप फॉर्मूला है। नेक्स्ट वी फाइंड द आउटलायर्स। Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर, Q3 प्लस वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस 7.5 और 28.5 का बाहर कोई भी डेटा है तो दैट इज आउटलायर। नाउ द आउटलायर विल बी एनी ऑफ इन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे क्या देखते हैं, माइनस 7.5 है, इसका बाहर कुछ है, नहीं है। और देखो 28.5 के बाहर कुछ है, ये मिनिमम है मैक्सिमम नहीं है, तो फिर क्या, देयर इज नो आउटलायर इन द डेटा। देयर इज नो आउटलायर इन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। आप एक नंबर ले, आप एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आउटलायर होता है। आउटलायर नहीं है तो समझ में आ गया, आउटलायर होता है। आप लोग पहले लिखना शुरू मत कर दो, पहले वीडियो को देखो, व्हाट आई एम टीचिंग, आप लोग देख लो, पूरा क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप फिर निकलो उसको कॉपी किताब में लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए। होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। कुछ डेटा लेते हैं, हम सारे असेंडिंग में ले लेते हैं। फिफ्टीन, 18, 21, एक ले लो, 47, ऐसे कुछ ले लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 47। ठीक है, तो अब क्या लिए, एन इक्वल टू कितना है, 8। तो एन इक्वल टू 8 यदि है तो हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू 8 सपोज है, तो हम क्या करेंगे, तो एन 8 बाई टू इक्वल टू कितना होता है, फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम, तो 1 2 3 4, हम ऐसे करेंगे 5। पहले मैं इसको ऑड करके करते हैं। ठीक है, 21 23 47, उसके बाद मैं बताऊंगा ये इसका इवन का क्या फॉर्मूला है वो बताऊंगा। ठीक है, लेट मी टेक द ऑड, पहले ऑड करके जो मैंने किया था वो कर लेते हैं, उसके बाद हम इवन वाली बात करेंगे। 25 59 ऐसे कुछ है। ठीक है,
11। आप कैसे करेंगे? हम पहले करेंगे एन इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n+1/2 आइटम इक्वल टू क्या होगा, फिफ्थ आइटम 9+1/2 आइटम इक्वल टू फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम क्या है, 1 2 3 4 5, 15 वाला होंगे। हाँ 15 वाले, तो दिस वन, ये तो 15, तो 15 इज हाउ मच, 15 इज द Q2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिर इवन हो गए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये फिर इवन, अब देखो फिर इवन ही आ गया हमारा, कोई बात नहीं। चलो इवन होगा तो क्या होगा, n/2 आइटम कर दो, सिंस इवन, सिंस इवन, तो n कितना है, n इक्वल टू 4, 4/2 सेकेंड आइटम, विच इक्वल टू कितना हो गया, सेकेंड आइटम मतलब ये, तो ये वाला क्या ले लिया मैंने, Q1। अब इधर, इधर भी सेकेंड आइटम होगा, फर्स्ट सेकेंड, तो ये क्या हो गया, Q3 हो गया। होप आई एम क्लियर। ठीक है, वही सेकंड आइटम सबकी हो गई, ये भी 4 है, 4/2। ठीक है, तो सेकंड आइटम। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे मीडियन इक्वल टू n/2, n/2, n/2 प्लस n/2 + 1 अपॉन 2 होल बाई 2 आइटम, तो कितना होगा, n/2 कितना होता है, n इक्वल टू 4 है, तो 4/2 कितना होता है, 2, और +3, 2 + 3 7, 7/2 इज 3, तो थर्ड आइटम ये 9 वाला होना था। 9 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ले सकते हैं। आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, ले लो, वही ले लो। हमने सिंपल, एक मिनट, आप इसी को ले लो, Q3 लिख ले, तो इफ n इक्वल टू इवन, देन मीडियन इक्वल टू n/2 प्लस n/2 + 1 होल बाई 2 आइटम, तो n कितना है, 4, 4/2 प्लस 4/2 प्लस 1/2 आइटम। होप आई एम क्लियर। यही फॉर्मूला हम लोग हमेशा किए ना, तो चलो इसी में ही करते हैं। 4/2 कितना था, 2, 2 प्लस 4/2, 2 + 1 इज 3/2 आइटम, 2 + 3 इज 5, 5/2 आइटम इक्वल टू 2.5, 2.5 मतलब हम 3 ले सकते हैं, 3 थर्ड आइटम, तो हम ये वाला ले लिए, ये वाला क्या लिए, दिस वन इज Q1, यहाँ भी ये वाला, दिस वन इज Q3। होप आई एम क्लियर। ओके, इवन वाला ये बात हमको समझ में आ गया। आप देखते हैं, हमें पता है 59 आउटलायर है, आप कैसे निकालेंगे देखते हैं। आप Q3 को या IQR इक्वल टू कितना होता है, Q3 माइनस Q1 विच इज इक्वल टू, Q3 का वैल्यू कितना है, Q3 इज हाउ मच, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, एक शीट ले लेते हैं। अब एक फॉर्मूला है, क्या था ये, Q1 माइनस, हाँ आउटलायर क्या होगा, Q1 माइनस 1.5, आउटलायर के लिए क्या करना पड़ता है, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, और एक होता है Q1 Q3 प्लस, एक मिनट देख ले तो फॉर्मूला, Q3 प्लस 1.5 इंटू QR। ठीक है, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। ठीक है, ये एक रेंज है, आउटसाइड दिस रेंज, तो क्या हो जाएगा, वो आउटलायर हो जाएगा। होप आई एम क्लियर। अब Q इक्वल कितना है, 9, 9 माइनस 1.5 इंटू IQR कितना है, IQR इक्वल टू 16, और ये क्या है, 25 प्लस 1.5 इंटू IQR कितना, 16,
अब 16 इंटू 15 कितना 2.4, 16 15 जा कितना 75 83 या 240 माने 24, 9 माइनस 24 और क्या होगा 25 प्लस 24। होप आई एम क्लियर। 9 माइनस 24 इज 15 माइनस 15 और ये कितना 25 टू 49। इस रेंज का बाहर, आउटसाइड दिस रेंज, आउटसाइड दिस रेंज क्या हो जाएगा, आउटलायर हो जाएगा। तो देखो ये 59 है, हमें पहले ही पता था 59 क्या है, दिस 59 इज द आउटलायर। और देखो ये रेंज के बाहर भी आ गया, रेंज के बाहर भी आ जाएगा, ये आ गया ऑटोमेटिकली। तो क्या हो गया 49 15 और 49 का बाहर है ना, तो देयरफॉर क्या हो गया 59 इज आउटलायर। होप आई एम क्लियर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होता है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली आई एम माई सेल्फ ए डेटा साइंटिस्ट, तो आई नो द मैथमेटिक्स एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, और कोडिंग क्या होंगे, कोडिंग कैसे करेंगे, ये जितना मैथ, ये मैथ सारे हम एक फंक्शन लिखेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन, और ये ऑटोमेटिकली दैट विल डू फॉर अस। उसके लिए हम बॉक्स प्लॉट्स यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, पाइथन में हम बॉक्स प्लॉट्स यूज करते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए। ओके, हम देखते हैं, आगे देखेंगे। तो होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ये आउटलायर और आईक्यू और ये सारे बातें आपको समझ आ गया। कि आपके एग्जाम में यदि आईक्यू और इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में आए डिस्कशन या आउटलायर के बारे में, तो आप लोग ये मैथमेटिक्स करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उससे आप लोग को अच्छी मार्क्स, पूरी मार्क्स मिल जाएंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। जैसे मैं कर रहा था, बीच में देख रहा था ये इधर n/2 मैं एकदम रॉ कर रहा हूँ। आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड एनीथिंग। ओके, दिस आर द कॉन्सेप्ट दैट आई नो। ठीक है, वही मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ एंड आई एम शोइंग यू। आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब देखो, विजुअलाइज द इंटर क्वार्टाइल रेंज इन बॉक्स प्लॉट्स। ये बॉक्स प्लॉट्स से सारे करते हैं। ये देखो, ये लोअर फेंस, ये अपर फेंस, इसके बाहर यदि है तो क्या होगा, आउटलायर होगा। इसके बाहर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आउटलायर होगा। और ये Q1 Q3 ये है, एंड दिस वन इज द मीडियन। ओ हाँ, इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, पाइथन में आपको दिखेगा इस ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। एक होता है ये लोअर वैल्यू हो गया, ठीक है, लोअर है, ये 25 परसेंटाइल हो गया Q1। उसके बाद ये 50 हो गया, ये 25th हो गया, 20th परसेंटाइल, ये 50th परसेंटाइल, ये 75th परसेंटाइल, और अपर फिंस तो मैक्सिमम वैल्यू हो गए। होप आई एम क्लियर। ठीक है, ये जो दिया हुआ इसका इसका ये अपर फिंस का बाहर जो आएंगे वो सारे आउटलायर होगा, और लोअर फिंस का बाहर जो आएगा पीछे, ये सारे क्या होगा, ये सारे आउटलायर्स होंगे। इन ए बॉक्स प्लॉट द विड्थ ऑफ द बॉक्स शोज यू द इंटरक्वार्टाइल रेंज, विड्थ ऑफ द बॉक्स Q3 माइनस Q1, तो ये इंटरक्वार्ट है, तो इज द इंटरक्वार्टाइल रेंज, विड्थ ऑफ द बॉक्स, होल बॉक्स, ये दिस वन इज द विड्थ ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो दिस वन इज इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये जो पूरी है ये इंटरक्वार्टाइल रेंज है। होप आई एम क्लियर। बॉक्स प्लॉट्स आर इजीली यूजफुल फॉर शोइंग द सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन ऑफ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का क्या है, वो सारे बातें पता चल जाएगा। द प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रू। ए बॉक्स दैट्स मच क्लोजर टू द राइट साइड मींस दैट यू हैव नेगेटिवली स्क्यूड। हाँ, ये राइट साइड में होगा तो क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड, और लेफ्ट साइड में होगा तो इसको पॉजिटिवली स्क्यूड। ये सारे बातें याद रखो। स्क्यू बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एंड दैट टू इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टॉपिक जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसका फिगर ये है, नेगेटिवली के लिए ये है, पॉजिटिवली ये। ठीक है, होप आई एम क्लियर। अब एक व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ, व्हाट आर द फोर मेन, कुछ क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं पेपर में। व्हाट आर द फोर मेन मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, क्या क्या है, रेंज हो सकते हैं, इंटरक्वार्टर रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकता है, वेरिएंस होते हैं। रेंज क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। इंटरक्वार्टर रेंज क्या होता है, द रेंज ऑफ द मिडिल हाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो Q3 माइनस Q1 मैंने किया था, इसको इंटरक्वार्टर रेंज। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, उसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। फाइन। और वेरिएशन क्या है, एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन क्या होते हैं, जीरो हो जाता है। ऐड करोगे देखो ऑलमोस्ट हर जगह जीरो हो जाता है, इसलिए वेरिएंस वेरिएंस में स्क्वायर करके हम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होता है, वो जीरो नहीं होते। नहीं तो -3 +3 तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप -3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 9 होगा। और 3 + 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 + 9 इज 18, तो हमारा वेरिएंस हो गया। और स्टैंडर्ड डिविएशन में वो वैल्यू ऑलमोस्ट हर टेबल में सब जीरो ही होते हैं, नहीं भी हो सकता है लेकिन जीरो ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो we make it, we square it, simple. What is the difference between range and interquartile range? Range क्या होता है, gives you the spread of the whole data set, spread माने कितना फैला हुआ है।
ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली गिव्स यू द स्प्रेड ऑफ द मिडिल हाफ ऑफ द डेटा, वो सिर्फ मिडिल हाफ की स्प्रेड बताते हैं। और वो रेंज क्या है, पूरी डेटा सेट का रेंज बताते हैं, क्योंकि मैक्स माइनस मीन होते हैं। व्हेन शुड आई यूज द इंटरक्वार्टाइल रेंज, जब हमें स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मिले, आउटलायर्स निकालना होता है, तभी हम क्या करते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज लेते हैं। ठीक है, होप आई एम क्लियर। आप लोग यदि वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज, लेक्चर्स यदि पसंद आ रहे तो फिर प्लीज गिव इट अ कमेंट। ठीक है, उसको हमें फीडबैक, आई विल टेक इट एज ए फीडबैक। कुछ भी इशू है, कुछ भी है, तो फिर एटलीस्ट आई आई लुक इनटू इट ना, ये क्या है, तो वीडियोस को हाउ आई कैन मेक इट मोर लाइव, मोर प्रॉपर। ओके, नाउ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोरेटरी डेटा को हम मॉडल मॉडल में प्रेजेंट करने से पहले एक्सप्लोर करते हैं उसका, उसका वो किस तरह का डेटा है, उसका वो मीन्स किस तरह वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो सारी चीजें हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, मीन मीडियन मेजर्स ऑफ जनरेटेड मीन मीडियन मोड, बार ग्राफ, बार ग्राफ यूज करेंगे, लाइन ग्राफ, और भी बहुत सारे ग्राफ है, वो सारे यूज करेंगे हम, बॉक्स प्लॉट्स वगैरह, ये सारे हम यूज करते हैं एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऑल दीज आर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस टॉपिक। एक होता है एक्सप्लोर, एक होता है एक्सप्लोरेटरी के लिए डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फरेंशियल, जिससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करेंगे, एच और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो हम उस टॉपिक, वो दूसरी वाले टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या होता है, स्पेशली फिगर्स है, विजुअल मीन्स, विद विजुअल मीन्स ही हम देखते हैं। ये देखो, ये चार्ट दिया, ये चार्ट लाइन ग्राफ दिया हुआ, इस तरह का बार ग्राफ दिया हुआ, इस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हमारा डेटा ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। It is crucial to understand it in depth before you perform data analysis and run your data through an algorithm. Okay, you need to know the patterns in your data. You need to know the patterns in your data and determine which variables are important and which do not play a significant role in the output. Okay, further some variables may have correlations with other variables. You also need to recognize errors in your data. कोई error है, कुछ है, तो वो भी हमें ढूंढ के निकालने हैं। Okay, जैसे एग्जांपल ले लो, क्लास 10th की स्टूडेंट, उसके स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, एज दिए हुए, एज कितना होगा, 15 से 17 के बीच में ही होंगे, 14 से 17 यू टेक इट। अब एक 30 साल का है, तो दैट इज एन आउटलायर, वो आउटलायर को निकालना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। ऑल ऑफ दिस कैन बी डन विथ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। It helps you gather insights and make better sense of data and removes irregularities and unnecessary values from the data. Okay, इसमें क्या होते हैं, हेल्प्स यू प्रिपेयर डेटा सेट फॉर एनालिसिस। उससे इससे क्या होगा, ये करने के बाद हेल्प्स यू प्रिपेयर डेटा सेट फॉर एनालिसिस, एनालाइज कर सकता हो, मशीन लर्निंग मॉडल हम यूज कर सकते हैं तो प्रिडिक्ट आवर डेटा सेट बेटर, हम प्रिडिक्शन भी यूज कर सकते हैं। ओके, गिव्स यू मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, और भी अच्छे अच्छे प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स यू चूज ए बेटर मशीन लर्निंग मॉडल। उस डेटा से ही हमें पता चल जाएगा किस तरह का मशीन लर्निंग मॉडल हमें इंप्लीमेंट करने। ठीक है, in general, graphs are some of the best ways to perform exploratory data analysis. Fine. अब क्या होता है, फॉर द क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटी क्वांटिटेटिव दोनों मैंने पढ़ा था वहां पे पहले, यू मे क्रिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, एंड ए बार चार्ट टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा अमंग डिफरेंट कैटेगरीज। फाइन, उसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बना देंगे। और क्वांटिटेटिव के लिए क्या, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्यूनेस, कर्टर्स, ये सारी चीजें करेंगे। Curtis's value relates to peakness in the data, ये सारे बातें हम करेंगे। In addition, you may also draw the chart like histogram to look into the frequency distribution. ठीक है, ये सारे हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन these are very important in exploratory data analysis. Okay, in univariate analysis we analyze data of just one variable. एक ही इन मतलब क्या होता है, सिंगल वेरिएबल का हम डेटा को हम ये करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, ये वेरिएबल, हाँ ठीक है, यू कैन डू दिस इधर इन ग्राफिकल, नॉन ग्राफिकल मीन्स, ग्राफिक और नॉन ग्राफिकल। ग्राफिकल क्या हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं या बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस, बार प्लॉट्स आल्सो कैन बी यूज्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद रेक्टेंगुलर बार, इस तरह के रेक्टेंगुलर बार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो यूनिवेरिएट एनालिसिस को बात करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए। अब बाइवेरिएट में क्या होंगे, बाइवेरिएट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ टू वेरिएबल्स, बाई मतलब टू,
फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। दोनों दो दो जो कॉलम है, दो कॉलम का रिलेशनशिप निकालने के लिए हम बाइवेरिएट एनालिसिस यूज करते हैं। जैसे सपोज दोनों का कोरिलेशन निकालना है, दोनों का रिलेशनशिप क्या है, सपोज ए बढ़ रहा तो बी भी बढ़ रहा, बी बढ़ रहा तो ए भी बढ़ रहा, या ए घट रहा तो बी भी घट रहा। तो ऐसे कुछ यदि है तो फिर कोरिलेशन है, तो हमें दोनों टेबल की जरूरत नहीं है, दोनों कॉलम सॉरी कॉलम की जरूरत नहीं है, एक कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है, तो एक ही कॉलम से हम काम करेंगे, ठीक है। तो दैट इज कोरिलेशन। तो उसमें क्या करेंगे हम, या रिड्यूस भी करेंगे, हमारा जो ये है डेटा सेट को भी रिड्यूस करेंगे, हम कॉलम को भी रिड्यूस करेंगे, या टेबल को भी रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है ए बढ़ रहा तो बी बढ़ रहा, ए घट रहा तो बी घट रहा, तो ये ए को डिलीट करना ये भी जरूरी नहीं है, उसके लिए भी हमें आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो उसको वो क्या है एक्चुअली, वो डेटा सेट क्या है, ए बढ़ रहा तो बी बढ़ रहा, ए घट रहा तो बी भी घट रहा, तो ये भी हो सकता है थर्ड कोई वेरिएबल है जो कॉज कर रहा है टू मेक इट हैपन, ठीक है। या ये भी हो सकता है, या बी बढ़ रहा तो ए बढ़ रहा, बी इज ऑल्सो कॉजिंग द थिंग, ए इज ऑल्सो, तो कौन है क्या है, ये सारे भी हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। हम यदि अंदर से यदि हम क्या करेंगे, ए को यदि हम या बी को हम डिलीट कर देंगे दैट कॉलम, तो फिर हमारा डेटा में हमारा हमारा जो मॉडल होगा, मॉडल गलत आउटपुट भी दे सकते हैं, कीप इन माइंड, ओके। Bivariate data has many practical uses in real life. For example, it is pretty useful to be able to predict when a natural event might occur. इससे हम prediction करते हैं, predictions वगैरह कर सकते हैं. Okay, our tool is bivariate data analysis. ठीक है. Sometimes something simple as plotting one variable just another on a Cartesian plane. जैसे ये है, यहाँ यहाँ से हम क्या टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, वेटिंग टाइम यहाँ पे, और ओल्ड फेथफुल इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन कुछ हुआ है टाइम्स में, ठीक है, कौन सा टाइम में क्या हुआ है, ठीक है, तो वो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट बाइवेरिएट, होप इट इज क्लियर। स्टूडेंट आप लोग को बहुत सारा क्वेरीज होता है, प्रैक्टिकल रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, बहुत सारी बातें होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन ओडीएल, ये सारे क्या है, इसके बारे में भी एक वीडियो मैम निकाल रहे हैं, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, उससे बहुत सारे आप लोग का क्वेरीज है वो भी आप लोग का क्लियर हो जाएंगे। वो वीडियो जब भी मीन्स मैम रिलीज करेंगे आप लोग देखना, दैट इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू। इग्नू क्या फ्यूचर के लिए आप लोग के लिए क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, एवरीथिंग विल बी डिफाइंड इन दैट वीडियो, ठीक है, और मैम विल कम विद दैट, ठीक है। तो प्लीज लुक इनटू इट, ठीक है। तो आप अपना जितनी क्वेरीज हमारे क्लास में आप पूछते थे ना, वो सारे क्वेरीज के जवाब वहां पे मिलेंगे आपको, ओके। चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, इन्फरेंशियल। हाँ, मैंने अभी बताया था इन्फरेंशियल के बारे में, इज परफॉर्म टू आंसर द क्वेश्चन of what is the probability that the results obtained from analysis can be applied to the entire population। हाँ, एक सैंपल से कुछ रिजल्ट आया, उसको हम एंटायर पॉपुलेशन में यूज कर सकते हैं या नहीं, वो सारे करने के लिए हम इन्फरेंशियल एनालिसिस यूज करेंगे। तो उसमें क्या होता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, एन वन एफ टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, डिसीजन ट्रीज, क्लस्टरिंग, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दीज आर ऑल द टॉपिक्स, ओके। तो हमें इतना जानने की जरूरत नहीं, कोरिलेशन और रिग्रेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन ट्री इंपॉर्टेंट है, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारे तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ऑल दोस थिंग्स, हमें सिर्फ ये सब इंपॉर्टेंट है। थोड़े बहुत इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो मेरे एक और प्लेलिस्ट है BCS40, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। एनोवा, टी टेस्ट, ये सब बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक, ओके। प्रेडिक्टिव एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, कोई इन्फरेंशियल एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, उसके बाद प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है, ये भी थ्योरी में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। With the availability of large amount of data and advanced algorithm for mining, analysis of large data have led the way to advanced predictive analysis। हाँ, डेटा बहुत ज्यादा होगा तो एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, टूल्स यूज करेंगे, एआई यूज करेंगे, मशीन लर्निंग यूज करेंगे, डेटा माइनिंग यूज करेंगे, डेटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग यूज करेंगे, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका बहुत सारा टूल्स है, वो टूल्स हम यूज करके हम इसमें प्रेडिक्शन करेंगे। प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड एड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये बहुत सारा डेटा लेके ये करते हैं, तो फॉर दैट प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूज्ड। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, हेल्थ केयर एप्लीकेशन, ये सारे जगह हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूज करते हैं। यूज करके हमें पता चल जाएगा सब कुछ, हम क्या करेंगे, फिर क्लॉज डाल देंगे, क्लॉज विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर देयर, नए नए क्लॉज आते रहते हैं। जैसे ही एनालिसिस करके हम कुछ निकालेंगे तो हम क्लॉज डाल देंगे, ये होने से ये नहीं होगा, हम कंपनी का भी तो फायदा देखेंगे, तो क्लॉजेस डाल देंगे। एंड ऑल दिस आर डन थ्रू दिस प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मशीन लर्निंग और मॉडल्स और डीप लर्निंग मॉडल्स, ये सारी चीजें से ही हम लोग ये सारी चीजें करेंगे, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आप कॉमन मिसकॉन्सेप्शन ऑफ डेटा, मैंने क्या बोला, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन,
when x and y are correlated, when they have a tendency to change and move together either in the positive or negative direction, ठीक है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है, नीचे जा रहे हैं, एक नो कोरिलेशन, कोई रिलेशन नहीं. तो वो we say that x causes y when a change in x leads to a change in y. Another way of saying is that y would not have happened without the preceding change in x. ठीक है, लेकिन कोरिलेशन कैन टेल अस इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड पॉसिबल कॉजल लिंक्स पता चल जाते हैं. उसका मतलब ये नहीं ये इट हैज कॉज समथिंग, ठीक है, लिंक्स पता चल जाते हैं. जैसे एग्जांपल ले लो, स्मोकिंग इज कोरिलेटेड विथ अल्कोहलिज्म बट इट डज नॉट कॉज अल्कोहलिज्म. ठीक है, स्मोकिंग से अल्कोहलिज्म होता नहीं है, इट इज नॉट द कॉज. दिस इज सो दैट देयर इज अ कोरिलेशन बट दिस इज नॉट कॉजेशन. तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग जो है ये भी पेपर में आएंगे, मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. जरूरी नहीं उसको डिलीट कर देंगे, उससे उसका हम फर्दर रीडिंग करेंगे, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन क्या है. ठीक है, ये सारी थ्योरी को, द मैक्सिमम कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन. क्या होता है, कोई थर्ड वेरिएबल भी आ सकता है, सबसे यूजफुल यहाँ पे देखो, इफ लिंक्ड इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन दैट एक्स कॉज्ड वाई, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट वाई कॉज्ड एक्स और दैट सम थर्ड वेरिएबल जेड कॉज्ड बोथ एक्स एंड वाई. तो ये भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को थ्योरी में लिखना है इसके बारे में. ठीक है, ये सारे एरर्स आते हैं, बच्चे क्या लोग क्या करते हैं, हम डेटा साइंटिस्ट ही ऐसे कर लेते हैं. हम क्या करते हैं, वो डेटा को कम करने के लिए या कॉलम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं हमारे मॉडल के, इट्स ए डिजास्टर, सारे गलत आ जाते हैं. ठीक है, तो हमें वो सब ध्यान रखना है. अब डाटा डेटा ड्रेजिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. डेटा ड्रेजिंग एज एन सजेस्ट इज एक्सटेंसिव एनालिसिस ऑफ वेरी लार्ज डेटा सेट. बिग डेटा की बात आ रही है यहाँ पे. सच एंड रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेटा एसोसिएशंस. डेटा एसोसिएशन किसका साथ कौन सा डेटा एसोसिएट है, क्या उसका कंक्लूजन है, ये सारी चीजें हम डेटा ड्रेजिंग में करते हैं. ठीक है, डेटा ड्रेजिंग. ओके, आप एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस इन सर्च इंजन में यूज करते हैं. क्या होता है, सर्च इंजन में हम डाल देते हैं, ठीक है, तो कुछ भी सर्च करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम सर्च करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सर्च कर लेते हैं. क्या होता है, एज यू नो व्हेन यू वांट टू सर्च फॉर समथिंग ऑन द इंटरनेट वी मोस्टली यूज सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू, सफारी. सो डेटा साइंस यूज्ड इन टू गेट सर्चेस फास्टर. डेटा साइंस यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सर्च समथिंग, सपोज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कोर्सेस, देन एट दैट टाइम द इंटरनेट एक्सप्लोरर वी गेट फर्स्ट लिंक गीक फॉर ग्रीक्स. ऐसे करके बहुत सारा सर्चेस और सर्च ऑप्शंस निकाल देते हैं. ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, या हम क्लिक करते हैं कौन सा किस में हम जाना है. इन ट्रांसपोर्ट डेटा साइंस आल्सो एंटर्ड इन द ट्रांसपोर्ट फील्ड लाइक ड्राइवरलेस कार. ड्राइवरलेस कार में क्या होगा, कैमरा लगा रहेगा, कैमरा एनालाइज करेगा जो वो सामने क्या है, मतलब कंप्यूटर विजन की टॉपिक आ जाएंगे. ड्राइवरलेस कार्स माने कंप्यूटर विजन आ जाएगा, उसका मतलब क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क्स आ जाएंगे. ठीक है, तो ड्राइवरलेस कार्स में हम मशीन लर्निंग वगैरह यूज करेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स यूज करेंगे, दैट वुड एक्ट एज ए ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, तो वो एनालाइज करेगा सामने क्या आ रहे हैं, या ठीक है, कोई इंसान है, जानवर है, या कोई नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, दे आर गोइंग टू कैच इट ओवर देयर. ड्राइवरलेस इट इज इजी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो मैंने बातें कर रहा हूँ वही लिखे हुए. इन ड्राइवरलेस का द ट्रेनिंग डेटा इज फेड इनटू द एल्गोरिथम एंड विद डेटा साइंस टेक्निक द डेटा इज एनालाइज्ड लाइक व्हाट इज द स्पीड लिमिट इन हाईवे. हाईवे में एक स्पीड लिमिट लिखा हुआ है, तो ड्राइवरलेस क्या करेगा, वही लिमिट में चलेगा, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो. ठीक है, स्पीड लिमिट इन हाईवे, बिजी स्ट्रीट, नैरो रोड्स एटसेट्रा, एंड हाउ टू हैंडल डिफरेंट चीजें व्हाइल ड्राइविंग. ये सारी चीजें फेड किया हुआ है. ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हो, इधर से उधर से ट्रैफिक जाम कर दी, ये सब चीजें नहीं होंगे. ठीक है, इन फिनांस तो मैंने बात कर दिया, रिस्क लॉस फ्रॉड, ये सारी चीजें इसमें हम फिनांस में यूज करते हैं. ई कॉमर्स में क्या होता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्या होता है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस विद पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस. जैसे आपने एक मोबाइल लिए तो वो बोल देगा, दोज हु बॉट दिस मोबाइल, या बॉट दिस चार्जर, बॉट दिस कवर, बॉट दिस स्क्रीन, या हेडफोन एक खरीदे. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देने लगते हैं. ठीक है, तो वो भी दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डेटा साइंस. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस. हेल्थ केयर में भी होते हैं, डिटेक्टिंग ट्यूमर, ड्रग डिस्कवरीज, मेडिकल इमेज एनालिसिस, वर्चुअल मेडिकल रोबोट्स. ठीक है, जेनेटिक्स एंड न्यूमोनिक जेनोमिक्स. ठीक है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग फॉर डायग्नोस्टिक्स एटसेट्रा, ये सारे में भी हम यूज करते हैं. इमेज रिकॉग्निशन. ठीक है, ठीक है, इमेज रिकॉग्निशन में क्या होगा, किसका फोटो है, जैसे आपने फोटो फेसबुक में डाला तो आपका फोटो रिकॉग्नाइज कर लिया, लिख देते हैं कि आपका नाम है राजेश, राघव, अनिरुद्ध, ठीक है, अमर, इस तरह का वो लिख देता है, ऑटोमेटिकली एनालाइज वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डेटा साइंस. देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये. उसके बाद टारगेटिंग रिकमेंडेशन. ठीक है, रिकमेंडेशन देंगे, वही सेम जो फोन खरीदने गए तो सोशल मीडिया में कुछ रिकमेंडेशन, ये सारी चीज. उसके बाद एयरलाइन राउटिंग प्लानिंग. राउटिंग प्लानिंग भी आजकल जो एयरलाइन में ऊपर जा रहे हैं वो भी थ्रू डेटा साइंस ही हमारे सारे चीज हो रहे हैं.
गेमिंग में भी यूज हो रहे, मेडिकल और ड्रग डेवलपमेंट यूज हो रहे, इन डिलीवरी लॉजिस्टिक। ऑटो कंप्लीट क्या होता है, जैसे ये सारी चीजें आप पढ़ोगे डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, ओके। ऑटो कंप्लीट क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में मैसेज टाइप कर रहे हो या मेल लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली आगे का 4-5 वर्ड या 8-10 वर्ड वो बता देता है, तो दोज आर ऑल ऑटो कंप्लीट, ओके। देखो, ऑटो कंप्लीट फीचर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा साइंस। ये नेचुरल पार्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पार्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी का पार्ट है। Understood? Autocomplete feature is very important part of data science where the user will get the facility to get a few letters or words when he will get the feature of auto completing the line. In Gmail, when we are writing format mail to someone, so that at the time, so at that time, data science concept of autocomplete feature is used where he is an efficient choice to autocomplete the whole line. Automatically वो line को complete कर देगा. Also in search engines and social media, various apps, autocomplete feature is widely used. ठीक है, ये समझ आ गया? होप इट इज क्लियर। अब हमारा आएंगे डेटा साइंस लाइफ साइकिल। अब डेटा साइंस लाइफ साइकिल ये फर्स्ट होते हैं, पहले एनालाइज किया जाता है, उसके बाद डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फेज, उसके बाद क्या कहता है डिस्क्रिप्शन डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, उसके बाद क्या डेटा मॉडलिंग एंड डेटा टेस्टिंग, उसके बाद क्या होता है मॉडल डिप्लॉयमेंट। ये सारी चीजें होते हैं। वही सिंस जो हम लोग किए थे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पहले एक एक फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, हाँ, तो उसी तरह के यहाँ पे भी फेजेस है, ठीक है। डेटा साइंस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें क्या होंगे, फॉरमोस्ट स्टेप फॉर डेटा साइंस वुड बी आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा साइंस प्रोजेक्ट, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज ऑल्सो कपल्ड विद द स्टडी ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सब कुछ हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, कॉस्ट वगैरह एवरीथिंग। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे from various sources. It is a continuous process. Once the data sources are identified, then data is checked for duplication of data. Duplicate होगा तो उसको हटाना है. Congestion of data, missing data. ठीक है सर, मिसिंग डेटा डेटा को ये करने के लिए उसमें डेटा डालने के लिए क्या करना पड़ता है, इम्प्यूटेशन एक टर्म होता है, आप लोग गूगल में करना, इम्प्यूटेशन, इम्प्यूट करेंगे, ठीक है, डेटा डालेंगे हम, वो मीन भी हो सकता है, वो मीडियन भी हो सकता है, कुछ भी हम वैल्यू निकाल के उसमें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, उसमें मीन मीडियन मोड, ये सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस किए वो सारे होंगे। उसका क्या होगा, मॉडल, कौन सा मॉडल यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द डेटा है वो, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेटा मॉडल्स बेस्ड ऑन द डेटा आर डेवलप्ड, all these data models are then tested for their validity with data test data. The accuracy of the various models are compared, contrasted, and a final model is proposed for data analysis. एक फाइनल मॉडल आते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, मॉडल को हम डिप्लॉय करेंगे, हाँ ठीक है। द टेस्टेड बेस्ड मॉडल इज यूज्ड टू एड्रेस द डेटा साइंस प्रॉब्लम, हाउएवर दिस मॉडल must be constantly refined as the decision making environment keeps changing and new data sets are implemented। न्यू डेटा सेट देके फिर हम बार बार चेक करते रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पुराने डेटा सेट हम फ्यूचर हम कर रहे हैं, नहीं, न्यू डेटा सेट भी हम डालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, कुछ भी चेंजेस होगा तो चेंजेस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है। इट विल बी यूजफुल फॉर यू। This video lecture is strictly according to the syllabus. Okay, keeping semester exam in mind, I have prepared this lecture. Part 2 क्या है, बिग डेटा, वो आएंगे 18 दिसंबर को, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर, प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो लेक्चर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।